See, so basically random module continuation with the output in the Python. In Python. Anybody want to ask any question from the previous lecture? Do you have any confusion or doubt? Okay. Today we will see some new things related to the output. In the last class we have seen some questions. And how many functions we have seen? How many functions we have seen? Just a small recap. Number one, random. Sir, random. Itself random is a function in the random module. Yes, sir. Number two, Random dot choice. rand int sequence wise. Okay, sir. Choice. Okay, sir. Choice. और Yes, एक sir. होता है choices. ये हमने नहीं देखा. Choices. Don't worry. ठीक हाँ, है. sir. अभी आज हम थोड़ा सा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं. द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द रैंडम मॉड्यूल. तो इन द लास्ट क्लास I have already told that two types of question will be asked in examination. Number one, you have to tell me the minimum and maximum range, min and max range. Okay? तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे. अच्छा, यहाँ पर. Okay, just 1 second. ये here. ये मैंने आपको लिस्ट भी भेजी थी. Okay? So random dot rand int. rand int जो फंक्शन है वो स्टार्ट और स्टॉप दोनों को इंक्लूड करके प्रिंट करता है. इट डज नॉट एक्सक्लूड एनी वैल्यू. इट प्रिंट्स इन अ इंक्लूसिव मैनर लाइक 1 and 5 विल बी इंक्लूसिव. अंडरस्टैंड? अगर हम यहां पर 1 प्लस कर दें तो 1 प्लस का मतलब मैंने बताया था 1 विल बी एडेड इन द स्टार्ट वैल्यू and 1 will be added in the stop value. So my value will be started from 1, 2, 3 like that. Do you understand? Yes, sir. अगर हम 10 add करते तो 10 will be added in the Yes, start value, sir. 10 will be added in the stop value. So 10 to 12. So 10, 11, 12 will be printed like that. Okay. Now before starting the output based question, I want to discuss the few things very important. For I in range 0. Just 1 minute. 0. Can you please tell what output will come? It's a very important fragment. It's a very important fragment. Single value we are passing. In the range we can pass the two values or we can also pass the single value. इसका बहुत बड़ा यूज है रैंडम के आउटपुट्स गेस करने के लिए. Okay. Do you have any idea? Okay. No, sir. In which no output will be occur. कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज इज अ फंक्शन. It always started from 0. It always started from 0. और जो लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू, ये इसको लास्ट वैल्यू कंसिडर करता है. तो लास्ट वैल्यू से एक कम लेगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और यहां पर ऑलरेडी 0 है तो 0 से स्टार्ट करके 0 से एक कम तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा. Now you can see that there is no output. हाँ, yes. अगर हम यहाँ पर 1 दे देते हैं, now it will start from 0 और इसको ये end value मानेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा और 1 से एक कम तो it will start from 0 to 0, then output will be print 0. Do you understand both the cases? By default, yes, range function start the printing from 0 by default. और ये जो वैल्यू हम देते हैं इसे ये लास्ट वैल्यू कंसिडर करता है. तो अगर हमने यहां पर 1 दी तो द कॉम्बिनेशन विल बी, ये बहुत ज्यादा यूज होगा अभी इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और इसको ये एक्सक्लूड करेगा. तो अगर इसको एक्सक्लूड करेगा तो 0 to 0. तो 0 to 0 का मतलब है व्हाट आउटपुट विल कम? 0 आउटपुट विल कम. जस्ट 1 minute, let me run. Understand? Do you understand? Now after that you will clear all the cases. 4. Then what will happen? क्या प्रिंट होगा?
क्या प्रिंट सर होगा? 0, 4 इज द लास्ट वैल्यू, तो 4 को अगर ये एक्सक्लूड करेगा तो 0 1 2, say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just 1 minute. सर एक बार फिर से बता दीजिए. Very important point. Yes, I will explain. Just 1 second. This is the output. Let me print the output in a same line. So screen will not be scroll. Okay. See, same output is coming. Okay. मैं फिर से बताता हूँ. जो वैल्यू हम यहाँ देते हैं वो रेंज फंक्शन उसे लास्ट वैल्यू मानता है अगर हम सिंगल दे रहे हैं, और स्टार्टिंग कहां से करेगा? अगर आपने सिंगल पैरामीटर पास करा है, सो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लास्ट वैल्यू -1 टू 1 second to last value -1. So here the last value I have given 4, so it will start from 0 to last value is 4, so 4 minus 1, how much? 3. So my combination will be 0 1 2 3. Understand? Do you understand? Okay. yes sir. इसको हम एक बार comment Yes, करते हैं. Okay. Now this is all about comments. Very important things I am discussing. Same output is coming. Okay. अगर हम इसको यहां पर 6 दे देते हैं, then what will happen? 0 to 5 प्रिंट करेगा. आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं तो मैं बताऊं. सो अगर हम इसी फॉर्मूले से चले, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लास्ट वैल्यू -1. सो व्हाट इज माय लास्ट वैल्यू? 6. तो 6 -1 6. कितना हो जाएगा? 5. -1 5. So it will print all the values from 0 1 2 3 4 and 5. Understand? Let me check the output. 0 to 5 output is coming. बताने का पर्पस ये था कि अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो अब इस 0 को ये लास्ट वैल्यू कंसिडर करेगा, तो 0 0 2 0 -1 दैट इज -1. तो अगर हम आपसे कहें कि 0 से -1 सीधी गिनती काउंट करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है. 0 से -1 सीधी गिनती काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि -1 पहले आता है और 0 बाद में आता है. हाँ, रिवर्स हो सकता है लेकिन स्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से -1 हम स्ट्रेट प्रिंटिंग नहीं कर सकते. नो आउटपुट इन स्ट्रेट मैनर. स्ट्रेट मैनर में कोई आउटपुट नहीं आएगा. Now you can again see no output is coming. See, this is a blank area, means no output. Clear? This clear to all of you? अच्छा, अब हम आ सकते हैं अपने क्वेश्चन पे. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है. ओके. ऐसे आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा दो चीजें. ये पूरा बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है. Observe the following Python code and find out which of the given option 1 to 4 are expected correct. 1 से लेकर 4 तक के आउटपुट्स लिखा है. एक्सपेक्टेड करेक्ट आउटपुट्स. इन 1 से 4 में कौन कौन से आउटपुट सही होने की पॉसिबिलिटी है. एंड ऑल्सो असाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन इन द वेरिएबल स्टार्ट. स्टार्ट में मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यू असाइन हो सकती है? डू यू हैव एनी आइडिया? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. And also assign the minimum and maximum value. Just 1 second. See, पहले हम इसको solve करते हैं. Red portion. So what will be the minimum and maximum value in the start? 0 0 to 3. यही तो दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं. तो what will be the minimum Yes, sir. इधर लिख लेते हैं. सर Very good. 0 हो जाएगी Minimum value और मैक्सिमम and maximum value और क्योंकि ये जो है वो इंक्लूसिव मैनर में चलता है, एक्सक्लूड नहीं करता. ये बात मैंने अभी बताई थी. सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, जस्ट 1 second. सो द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 3. तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आएगा. एंड दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वेटेज इज 1 marks. डू यू अंडरस्टैंड? आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन. ये हो गया, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप कर लेंगे. अब दूसरी चीज,
हमको इसका आउटपुट गेस करना है और ये बताना है कि कौन इसमें से कौन से आउटपुट्स हो सकते हैं। यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना। स्टार्ट की अगर हम बात करें, प्लीज लुक एट, मैं ड्राई रन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। यही तो आएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट में या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। 0 से पहले कोई वैल्यू नहीं आएगी और 3 के बाद में कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हमने two parameter we have set in such a manner. It is clear or not? सर एक चीज पूछनी है। अभी हम इतना पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं लाइन के ऊपर का, लाइन के नीचे का नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लाइन के ऊपर का डिस्कस कर रहे हैं। बोलो सर, क्या इसका आउटपुट 2 सर फिर वो आएगा एट अभी बताएंगे, अभी पहला वाला ऑप्शन आउटपुट, प्लीज वेट, पहले प्रोसीजर पे ध्यान दो। ओके सर। प्रोसीजर विच आई एम डिस्कसिंग वो थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर अभी हमें भी नहीं मालूम है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर, इसको देखो, ये क्या है, व्हाट इज दिस? अभी हम लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिस्ट। से यस और नो? अगर ये लिस्ट है तो इसमें नंबर कैसे स्टोर होंगे? जस्ट 1 मिनट। ये सारा काम आपको करना होगा जब आप इसका आउटपुट गेस करेंगे। 4 कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। 2 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, 6 यहां आ गया, 8 यहां आ गया। अच्छा, दूसरी बात, इट स्टार्टेड फ्रॉम 0। हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0, 1, 2 और 3 से होती है। इतना हमने सारा काम कर लिया। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट सबको क्लियर है? 0 से 3। यस सर। ओके। अब सबसे पहले स्टार्ट में हम 0 एज्यूम कर रहे हैं। हमें ये सारी वैल्यूज एज्यूम करनी है, क्योंकि वैल्यू कोई भी हो सकती है रैंडम में। इट मे बी द स्टार्ट वैल्यू ऑफ 0, इट मे बी द स्टार्ट वैल्यू ऑफ 1, इट मे बी द स्टार्ट वैल्यू ऑफ 2, इट मे बी द स्टार्ट वैल्यू ऑफ 3। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट की वैल्यू को 0 लिया। तो अगर हम 0 लेंगे तो फॉर आई इन रेंज एंड स्टार्ट वैल्यू आई हैव टेकन 0, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा? कुछ प्रिंटिंग होगी, कुछ लूप चलेगा या नहीं चलेगा? नो सर। सर नहीं चलेगा। Why? सर अभी आपने एक केस सर क्योंकि आपने यहाँ पर एक डिस्कस किया था 0 वाला। यस सर, वो के केस में हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है, समझ नहीं आ रहा है। यस, नो आउटपुट विल प्रिंट। ये केस अभी हमने लिया था ना, रक्षित ध्यान से समझो, ये केस लिया था हमने। इस पे क्या आउटपुट आएगा? सर 0 आएगा, कोई मतलब कोई आउटपुट नहीं होगा। कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 से सर हमारा लूप शुरू ही 0 पे हो रहा है, 0 पे ही खत्म हो रहा है, इसलिए कोई आउटपुट नहीं आएगा, है ना? यस सर। स्टार्ट में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? स्टार्ट में 0, 1, 3 में 0, 1, 2, 3 भी आएगा। 0, 1, 2, 3 ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। 0, 1, 2, 3 आएगा सर। सबसे पहले हमने स्टार्ट में 0 कंसिडर किया। क्या किया? 0। तो अगर हमने स्टार्ट में 0 लिया तो इस स्टार्ट की जगह पे 0 आ जाएगा। स्टार्ट लिखा है ना, तो स्टार्ट में हमने 0 लिया तो इस स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अब हमारा लूप होगा फॉर आई इन रेंज 0। से यस और नो? फॉर आई इन रेंज 0। हाँ, यस सर। we are discussing the most crucial part of the course. तो for I in range 0, तो 0 के केस में no output है ना? 0 के केस में no output, क्योंकि अभी देखा हमने कि 0 के केस में कोई आउटपुट नहीं आता। तो 0 के केस में no output।
Say yes or no. Yes. Yes, sir. Okay. यस सर अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे? जस्ट 1 सेकेंड. अब हम सिर्फ कौन वन लेंगे हैं? 1. वन अब हमें सारी वैल्यू One. लेनी है ना, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सी वैल्यू आएगी रैंडम में. अब हम 1 को लेते हैं. तो अगर हम यहाँ 1 ले लेते हैं, यस सर आराम से समझना है, बहुत आराम से. अगर हम यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो आई Yes, sir. में, इस आई में, ये जो आई है लिखा ना फॉर आई इन रेंज, तो ये हमारा लूप हो गया कुछ इस तरह से. फॉर, जस्ट यहां तो हम लिख सकते हैं, वेट करो, यहां हम लिखते हैं. अगर हमने स्टार्ट की वैल्यू को 1 लिया, जस्ट 1 मिनट प्लीज, मैं बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर एक समझ में आ गया तो फिर सब आ जाएंगे. अब हमारा लूप हो जाएगा ये ऐसे, फॉर आई इन रेंज इन रेंज 1. यही तो होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट की वैल्यू को 1 Yes, sir. तो अगर आई इन रेंज 1 हो गया, तो आई में क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं? आई हमारा लूप चलेगा 0 से 1. से यस और सर तो 0 ही आएगा. हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. अगर 0 से 1 चलेगा तो 1 तो हमारा एक्सक्लूसिव होता है, तो आई Yes, में sir. केवल 0 आएगा. क्या जीरो आएगा? आएगा केवल Zero. केवल 0 आएगा, है ना? जीरो तो अगर आई Yes. की वैल्यू में केवल 0 आएगा, सिर्फ 0, तो ये लूप हमारा एक बार चलेगा, 1 टाइम. तो अब देखो Yes, sir. आई की वैल्यू कितनी है? 0. तो a का 0 है कितना? 2 है ना? तो 2 Yes. यहां पर a का 0, बिकॉज आई इज 0, तो a का 0 होगा 2, और 2 के बाद 2 डबल एट द रेट के साइन दिए हैं, और उसके बाद एंड इज इक्वल टू स्पेस है. तो पहला आउटपुट हमारा ये आ गया. दिस इज माई फर्स्ट आउटपुट. अंडरस्टैंड? दिस इज माई फर्स्ट आउटपुट. अब जब Yes, आई की sir. वैल्यू 1 होगी, देन लूप विल बी ब्रेक, क्योंकि 0 से 1 में 1 एक्सक्लूसिव होता है, तो ये 0 to 0 यानी सिर्फ 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए नहीं चलेगा. यस सर First output is clear. Just 1 minute, only 1 minute. You don't worry about that. I will explain again. अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ये सब रिमूव कर रहे हैं. Just 1 minute, only 1 minute. अब हम i की वैल्यू को 2 लेके चलेंगे. सॉरी, स्टार्ट की वैल्यू को 2 लेंगे. जब हम स्टार्ट की वैल्यू को 2 लेंगे, तो i में क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? i जीरो और वन गुड वेरी गुड. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 2 हो गया फॉर आई इन रेंज 2. तो आई इन रेंज 2 का मतलब है, तो आई की वैल्यू होगी 0 1, 2 नहीं, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ आई. आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ आई. आई की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी. मतलब ये 2 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए. तो a ऑफ आई में हम सबसे पहले 0 ले रहे हैं, तो a ऑफ 0, तो a ऑफ 0 यानी 2 एट द रेट, इसको एट द रेट मानिएगा. फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो a का 1, तो a का 1 कितना है? 4, और 4 के बाद 2 एट द रेट. दिस इज एट द रेट, दिस इज एट द रेट. ये हमारा हो जाएगा सेकेंड आउटपुट. इज इट क्लियर or not? Second output is not available in the output list. No problem. You Yes. don't worry. अब एक मिनट, just a moment please. अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं. अभी हमारे पास एक वैल्यू और बची है, that is 3. तो अगर हम स्टार्ट की वैल्यू को 3 लेते हैं, तो हमारा लूप हो जाएगा फॉर i in range 3. तो जब i in range 3 होगा, तो कहां से कहां तक i के कॉम्बिनेशंस होंगे? सर 0 से 3 - 1 तक के. हाँ, 3 - 1 यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है. 2 हो सकता है. अगर हम स्टार्ट की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2. तो सबसे पहले हम i की वैल्यू को 0 ले रहे हैं, तो a ऑफ 0, बिकॉज i 0,
तो a ऑफ जीरो कितना होगा 2 एट द रेट उसके बाद i की वैल्यू को हम 1 लेंगे क्योंकि लूप आगे प्रोसीड Four. करता है, तो i की वैल्यू 1 लेंगे, तो a का 1, तो a का 1 कितना 4 एट द रेट अब i की वैल्यू को हम 2 लेंगे, तो a का 2 बिकॉज i इज 2, तो a का 2 हमारा है 6 एट द रेट यानी कि अब हमारी स्टार्ट की सारी वैल्यूज खत्म हो गई। तो या तो हमारा आउटपुट ये आ सकता है या आउटपुट हमारा ये आ सकता है, दिस इज माय सेकंड आउटपुट, और थर्ड आउटपुट हमारा ये है, दिस इज माय थर्ड आउटपुट। तो अब हमें ये देखना है कि लिस्ट में कौन कौन से आउटपुट अवेलेबल है। लिस्ट में हमारे पास एक ये आउटपुट अवेलेबल है, फर्स्ट है और थर्ड है, और एक आउटपुट हमारा 2 एट द रेट 4 एट द रेट। This is the two output which can be expected in this. Clear? One second. I just want to copy this code for better and 100% confirmatory test कर रहे हैं हम लोग, confirmatory test. Control V. मैंने सेम फ्रैगमेंट को यहां पे पेस्ट कर दिया। अब हम इसको रन कर रहे हैं। देखो एक आउटपुट हमारा ये आ रहा है जो कि हमने गेस किया था, देखो आ रहा है ये वाला, थर्ड वाला देखो प्लीज। यस सर। एक बार हम इसको और रन करते हैं। अभी नो आउटपुट हो गया ये नो आउटपुट बता सकते हो किस केस में आ रहा है सर? जब जीरो में होगा। वेरी गुड, एक्सलेंट। जब आई की जब स्टार्ट की वैल्यू हमारी 0 थी। एक बार फिर वापस चलते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारी स्टार्ट की वैल्यू 0 थी तो मैंने बताया था कि जब स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी इन दैट केस नो आउटपुट, क्योंकि अब हम रन कर रहे हैं तो उसने नो आउटपुट भी दे दिया। अब देखो ये कौन सा आउटपुट आया हमारा 2 एट द रेट हमारा फर्स्ट वाला आया। अगेन फिर से हमने इसको रन करा, फिर से 2 एट द रेट आ रहा, कोई बात नहीं हम फिर रन करते हैं। अभी फिर यही आ रहा है सेम, कभी कभी सेम आ। अब देखो कौन सा आया, अब कौन सा आया ये वाला आया ना थर्ड वाला, ठीक है। आई होप यू नो डैट कि हम किसके लिए वेट कर रहे हैं हम। यस सर समझ गए सर, सेकंड वाले के लिए। हाँ। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस आउटपुट का हम वेट कर रहे हैं वो हमारे लिए तो एक्सपेक्टेड होता है लेकिन वो थोड़ा देर में आता है क्योंकि ये आ गया। अंडरस्टैंड आ गया सर? यस सर। तो इन तीन, हाँ अगर प्रैक्टिकली देखा जाए बहुत डिटेल में तो हमारे 4 आउटपुट्स आएंगे। एक हमारा नो आउटपुट भी तो है, वो भी आ सकता है। एक हमारा आ सकता है 2 एट द रेट, एक आ सकता है 2 एट द रेट 4 एट द रेट, और एक ये आ सकता है 2 एट द रेट 4 एट द रेट एंड 6 एट द रेट। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। आई जस्ट वांट टू आस्क टू एवरीवन, देखो सबको समझ में आया या नहीं, और शुड आई एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स? मैं थोड़ा और कुछ चीजें बता दूं, आराम से देख लो, जानवी, आर यू देयर? Yes, sir. Do you understand this? Yes, sir. Satvik, do you understand this? Yes, sir. Tony Stark? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Any problem? Yes, sir. No, sir. Good. अब देखो, do you know the meaning and the concept of nested looping? क्योंकि हमारा सेकेंड आउटपुट बेसिकली नेस्टेड लूपिंग पे है। Yes, sir. नेस्टेड लूपिंग थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग, नेस्टेड लूपिंग के बारे में थोड़ा बहुत। सर लूप के अंदर एक और लूप हो तो उसको नेस्टेड लूपिंग कहे सर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई। अच्छा इसमें ये तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 1 मिनट प्लीज। देखो इसको हम एज इट इज तुम्हारे ग्रुप में भेजना चाह रहे हैं क्योंकि इसके लिए तुमको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो ये अभी तुम्हारे में एज अ आउटपुट जा रहा है। इसको अगर तुम एक बार देख लोगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। मैक्सिमाइज करके भी तुम देख सकते हो
तो ये तुम्हारे ग्रुप में चला गया एंड क्लियर। तो माय दिस आउटपुट इज कंप्लीटेड, लिखे दे रहे हैं कंप्लीटेड, ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया, एस कंप्लीटेड। अब देखो ये वाला बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा हमको आइडिया होना चाहिए नेस्टेड लूपिंग का, बहुत थोड़ा स्मॉल आइडिया अबाउट नेस्टेड लूपिंग। ठीक है, स्मॉल आइडिया अबाउट नेस्टेड लूपिंग। यहां पर एक लिस्ट दे रखी है, इसका क्वेश्चन एक्चुअली मैं जल्दी में लिख नहीं पाया, मैं नहीं लिख पाया इसका क्वेश्चन। इसमें भी यही था कि व्हाट विल बी द, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। सर मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। इज इट राइट और रॉन्ग? प्लीज, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यहां से पता चलता है 0,3, तो यानी कि min value will be 0 and max value will be what? Will be what? 3। ये क्लियर हुआ या नहीं? ये क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल बात कर रहे हैं अगर हम सारे स्टूडेंट्स की, तो अगर वो पूरे कोर्स में अगर कहीं कंफ्यूज होते हैं तो वो सिर्फ रैंडम के आउटपुट में होते हैं। अगर हम एक मेजॉरिटी की बात करें, ये वाला पार्ट सब कर लेते हैं। ये जो सीबीएसई बैच गया है C++ का, उसमें भी रैंडम जो है, रैंडम में हम लोगों को टाइम थोड़ा ज्यादा लगा था, लेकिन बाद में सब लोगों की समझ में आ गया था। ठीक है, और पाइथन का रैंडम जो है वो C++ के रैंडम से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो, चलो अब इसका हम आउटपुट गेस करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा नेस्टेड के बारे में बता दें। नेस्टेड लूप का मतलब होता है, देखो दो चीजें। पहली तो डेफिनेशन है लूप इनसाइड द लूप। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप आ जाए तो उसको हम लोग नेस्टेड लूपिंग कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी और समझनी है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आउटर लूप द इनर लूप परफॉर्म कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपने एक लूप लिखा फॉर i इन रेंज 1,5 और फिर उसके बाद आपने दूसरा लूप लिखा फॉर j इन रेंज एंड 1, i ले लिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें, क्योंकि फिर आउटपुट में कई चीजें हमको हैंडल करनी पड़ती हैं। रैंडम भी हैंडल करना है, लिस्ट भी हैंडल करना है, और फिर उसके बाद हमको नेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। तो अब देखो ये कैसे चलेगा, ये किस तरह से चलेगा। सबसे पहले i की वैल्यू 1 से 5 दे रखी है, तो i की वैल्यू पॉसिबल्स कहां से कहां तक जाएंगी? 1 2 3 4। गुड, ऐसे ही तो जाएंगे, क्यों भैया? Yes, अब सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले 1 होगी। अब ये j का लूप चलेगा हमारा 1 से 1, तो 1 से 1 का मतलब है कि 1 से 0। यस सर ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम तुमसे कहें कि 1 से 0 सीधी गिनती सुनाओ, उल्टी नहीं सीधी, ट्राई, एनीबडी कैन ट्राई। 1 से 0 स्ट्रेट काउंटिंग करो, 1 से 0 कर पाओगे? नहीं सर। एक बार आप कर दीजिए, फिर हम लोग कर लेंगे। कोई नहीं कर पाएगा, इवन मी ऑल्सो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जो चीज इम्पॉसिबल है उसको हम भी नहीं कर सकते। इसको समझाया इसलिए गया है क्योंकि यहां पर ऐसा हो रहा है। i की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, तो 1, ये तो 1 इंक्लूड होगा नहीं, तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 से 0। तो 1 से 0 स्ट्रेट लूप इज नॉट पॉसिबल। तो जब i की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप चलेगा ही नहीं। से यस और नो? अब देखो, यस सर। अब हम i की वैल्यू को 2 लेके चल रहे हैं।
तो अगर हम 2 लेके चलेंगे तो 1 से 2, तो 1 से 2 का मतलब क्या है? सर Sir, 1 सर सिर्फ 1 इंक्लूडेड रहेगा, 1 नहीं 1 आएगा से फिर 1 से। चलेगा, 1 से 1 चलेगा भाई, Yes, 4 sir. एक्सक्लूड हो जाएगा ना, तो ये 1 से 1 चलेगा, तो जे में केवल 1 आएगा। क्या आएगा? 1 1 आएगा, आएगा। और जे में One. 1 प्रिंट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद आई की वैल्यू को हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर के 3 तक। 3 तक। तो 1 से 3 का मतलब क्या है? जे की वैल्यू 1, जाएगी 2. 1 और 2, 1 और 2. 2 बार जाएगा, तो 1 और 2 प्रिंट होगा। डोंट वरी अबाउट द प्रिंटिंग फॉर्मेट, वो हमने हैंडल वगैरह नहीं लगाया है, बस हम समझा रहे हैं। Yes, sir. ठीक। तो 1 और 2 तक जाएगा, तो 1 2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद हम आई की वैल्यू को क्या लेंगे? 4 लेंगे। 4. 3। तो 4. ये 1 से 4 चलेगा। 1 मिनट। तो अगर 1 से 4 चलेगा, तो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशंस इन द जे? 1 1, 2, 3. 2 3, तो आउटपुट आएगा 1 2 3। इट्स अ काइंड ऑफ पैटर्न। अगर आप लोग पैटर्न में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं या आप इस पर कमांड करना चाहते हैं, तो 2-3 लेक्चर्स पैटर्न पे भी हमने अपलोड करके दिए हैं। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू यू हैव एनी डाउट? Okay, sir. एनी No, डाउट? sir. नो डाउट। ओके, No, sir. यस सर। अब हम आ जाते हैं वापस अपने आउटपुट पर। एक्चुअली टाइम भी देखना है कितना है, टाइम 4 मिनट है, तो हो सकता है कि हम इसका आउटपुट गेस कर लें। ओके, अब देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें, तो सबसे पहले हम x की वैल्यूज देख लेते हैं कि x में क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। देखो x में वैल्यू हो सकती है या तो 0 या 0, 1 1, या 2, 2, 3. यही तो हो सकती हैं। एंड व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू? 0 3। Sir, 0 or 3. एंड दीज आर व्हाट? दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज। इनको हम Yes, लोग sir. बोलते हैं पॉसिबल वैल्यूज। इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, अब देखो अगर हम सिटी की बात करें, तो सिटी इज अ लिस्ट, स्ट्रिंग बेस्ड लिस्ट है, स्ट्रिंग बेस्ड लिस्ट। अब यहां पर इसको हम थोड़ा नंबरिंग कर दें। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये 3 पर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप में ऑटोमेटिक स्पीड आती जाएगी। तो अगर हम आई इन सिटी करें, तो अगर हम आई इन सिटी कर रहे हैं, तो सिटी में सबसे पहले आई में क्या निकल के आएगा? जो 0 पोजीशन पे है, जो Yes, 0 sir. पोजीशन पे है, Lucknow. तो क्या निकल के आएगा? लखनऊ निकल के आएगा। तो आई में लिखना पड़ेगा भैया, लखनऊ आ जाएगा। ध्यान से देना। अब अगर आई में लखनऊ आ गया, ठीक है, और एक्स की वैल्यू को हम सबसे पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं? 0. 0। तो अब देखो जे का लूप चलेगा 1 से 0, Sir, ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा. 1 से 0, 1 से 0 कॉम्बिनेशन में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। चलेगा ही Understand? नहीं लूप. तो ये लूप Yes, हमारा sir. ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो गया। ब्रेक हो जाएगा. अब देखो ब्रेक हो गया, Yes, ब्रेक हो गया ना, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम x में 1 एज्यूम कर लें। अभी हम लखनऊ के लिए सारे कॉम्बिनेशन एज्यूम कर रहे हैं, क्यों? ठीक है. अब हम x में पहले 0 एज्यूम कर रहे थे, अब हम क्या एज्यूम करेंगे? 1. 1। अब 1 के लिए देखते हैं क्या होता है। मुंबई आएगा. एक मिनट, बहुत आराम से चलना है हमको। 1 से 1 Okay, का sir. मतलब क्या होता है? 1. 1 से 1 का मतलब क्या होगा? 1 से 1 का मतलब Sir. होगा 1 to 0, 1 to 0. हाँ. जो कि पॉसिबल नहीं है. नहीं है ना, पॉसिबल प्लीज। नहीं है. हाँ सर. 1 से 1 में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेकंड वैल्यू एक्सक्लूड करती है। अब हम Yes, x की sir. वैल्यू को 2 लेके चलते हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज, आराम से। x की वैल्यू को हमने 2 ले लिया, तो अगर हमने x की वैल्यू को 2 ले लिया,
तो अब हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 1 से 2 का मतलब 1 to 1। जे का लूप चलेगा हमारा 1 to 1। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट क्रूशियल पार्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द कोर्स। ये निकल गया तो कोर्स निकल गया। तो 1 to 1, 1 से 2, तो 1 से 1 चलेगा, एक बार चलेगा। यस सर। तो एक बार अगर Yes, sir. चलेगा तो आई प्रिंट होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? लखनऊ। लखनऊ। तो दिस विल बी माय फर्स्ट आउटपुट। ये तब आएगा जब हम जे की वैल्यू को जब हम x की वैल्यू को 2 कंसिडर करेंगे। तो दिस इज माय फर्स्ट आउटपुट। जस्ट 1 मिनट। अब हम x की वैल्यू को 3 भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं या नहीं ले sir. सकते? तो अगर हम x Sir, की वैल्यू को 3 ले लें, 3, तो क्या होगा भैया? अगर हम 3 ले लें तो यहां पर 3 करते हैं, तो 3 के केस में कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? जे के कॉम्बिनेशंस 1 और 2 बनेगा। 1 से 1 2 बनेगा और 2, और 1 2 बनने का मतलब है कि लूप एक बार 1 रिकॉर्डिंग। तो हमने सबसे पहले आई में लखनऊ एज्यूम किया था। एक्चुअली मीटिंग वाज डिस्कनेक्टेड, तो लखनऊ एज्यूम किया था। तो लखनऊ प्रिंट होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब x की वैल्यू 2 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो लूप चलेगा 1 से लेकर 1, क्योंकि 2 से 1 कम, तो 1 to 1 चलेगा, तो 1 टाइम लूप चलेगा। देन आई विल बी प्रिंटेड एंड द आई इज लखनऊ। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? ठीक है, कर्सर ब्रेक हो गया। अब आई की वैल्यू हम लोग लेते हैं मुंबई, क्योंकि अब सेकंड मुंबई स्टोर होगा। लखनऊ स्टोर हो चुका है, अब मुंबई स्टोर होगा। तो जब मुंबई स्टोर होगा ठीक है, तो जब मुंबई स्टोर होगा तो x में सबसे पहले क्या लेंगे हम? 0। तो 1 से 0 कुछ चलेगा नहीं लूप, आपको मालूम है, नहीं चलेगा। ठीक है, और जब i की वैल्यू 1 होगी, क्या होगी? 1 होगी तब भी नहीं चलेगा। तब भी नहीं चलेगा। 2 पे चलेगा? हाँ सर चलेगा, मुंबई 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 पे चलेगा। जब 2 पे चलेगा, तो जब 2 होगा तो 1 से 2 एक कम, यानी 1 to 1, 1 to 1। यस सर। तो मुंबई विल बी प्रिंटेड आफ्टर लखनऊ लाइक दैट। यस सर। डन। फिर जब i की वैल्यू, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू, भाई लूप ब्रेक हो जाएगा। लास्ट वैल्यू हमने 2 ली थी। यस लखनऊ के बाद मुंबई आ गया हमारा। ठीक है, ये आउटपुट हम साइड में लिख रहे हैं। ओके, अब उसके बाद i में हम एक दूसरी सिटी लेंगे, दैट्स बैंगलोर। बैंगलोर। अब बैंगलोर के केस में क्या होगा? सबसे पहले हम x में क्या लेकर चलेंगे? 0 बैंगलोर के लिए। तो 1 से 0, जस्ट 1 मिनट प्लीज, आई वांट टू क्लियर दिस। ओके, सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे? प्लीज रिप्लाई फास्ट। 0। तो 1 से 0 लूप विल नॉट। फिर i की वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो 1 से 1 भी हमारा लूप नहीं चलेगा। तो जब 2 होगा तो 1 से 2 के केस में लूप एक बार चलेगा। तो जब 1 टाइम लूप चलेगा तो i में क्या है? i में बैंगलोर। सो बैंगलोर will be print, and after that we are also breaking the line. You can see that the line is also breaking. तो इस मैनर में आउटपुट आएगा लखनऊ, मुंबई, बैंगलोर। ओके, 1 मिनट। अब i की वैल्यू हम क्या लेंगे? मद्रास। क्या लेंगे? मद्रास। तो जब हम मद्रास लेंगे तो अगेन सेम सिनेरियो, 1 से x में हम सबसे पहले क्या लेंगे? 0। तो 1 से 0 लूप विल नॉट एग्जीक्यूट। अब थोड़ा इजी हो गया। x की वैल्यू 1, तो 1 से 1 भी हमारा लूप नहीं चलेगा। बस आपको रेंज फंक्शन अगर आता है तो आप 60 to 70% सक्सेस हो जाएंगे रैंडम में। अब x की वैल्यू क्या होगी? 2। तो जब 1 से 2 चलेगा
तो 1 से 2 का मतलब 2 से 1 कम, यानी 1 to 1। तो 1 to 1 मतलब एक ही बार लूप चलेगा। हाँ आ रहे, मद्रास, और मद्रास। madras, madras, like that. So this is the most expected output. सबसे ज्यादा इसी के हाई चांसेस हैं। सर एक चीज पूछनी थी, यस, अगर x3 होगा तो क्या होगा? कहां पर? नहीं हाँ ठीक है सर, समझ गया। x3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो 2 हुआ, 3 एक्चुअली, ये जो 0 से 3 था ना, तो जब 0 से 3 था, जब 0 से 3 था तो एक आउटपुट तो ये होगा ही, लेकिन हाँ। जब x की वैल्यू 3 होगी, एक कॉम्बिनेशन और समझ लो, जब x की वैल्यू 3 होगी तो हमारा लूप चलेगा 1 से लेकर के 2 तक। यस सर। तो 1 से लेकर 2 तक चलेगा ना, दो बार लूप चलेगा। तो सेकंड कॉम्बिनेशन यानी लखनऊ दो बार प्रिंट हो सकता है, लखनऊ, क्योंकि जब 1 से 2 चलेगा तो हर प्रिंटिंग 2 बार होगी। यस सर। हर प्रिंटिंग 2 बार होगी। यस सर। तो जब हर प्रिंटिंग 2 बार होगी तो कैसे होगी? सर लखनऊ होगा, फिर एक स्पेस होगी, उसके बाद फिर लखनऊ होगा। हाँ ये, क्योंकि वो एंड में स्पेस है। यस यस यस, थैंक्स फॉर हेल्प, ये आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें मुंबई की, तो जब लूप 2 बार चलेगा तो सिमिलरली मुंबई स्पेस मुंबई, क्यों भैया? यस सर। और फिर सिमिलरली बैंगलोर स्पेस बैंगलोर, यस सर। इसको बैंगलोर समझ लो थोड़ी देर के लिए, और मद्रास स्पेस मद्रास। अंडरस्टैंड नाउ? Okay, sir. This will be the expected output of this. You can run by yourself. Okay? तो आज की क्लास हम यहीं पे रोक रहे हैं. Do the more practice on randomizations. Okay? Yes, sir. Okay, sir.